Today, 20th August, Thursday, 5:30. We are just uh, on the way to start the talk on Claude AI. One, first, second, third, fourth is already over, which will be available on blog. Now, this is first session. C. Shailesh Vadvania. He is a faculty at ICAI, and he has taken a talk on AI at different uh, uh, this thing. He's very different places. He has just recently went to Surat. He has gone to Bombay, and he has taken at ICI. He is also uh, uh, taking uh, talk at CA Firm, where he guides CA to automize, how to automize. He is guiding for that. So today we are going to listen from him on the subject of Claude AI. Before we start here, let me introduce myself to some other subject which we as our workshop from our office is taking place on YouTube. Next slide, please. We're going to have 27th and 3rd September the same subject. This would be the 7th. This lecture would be of 7th, like 10. We are taking hands-on case study, real-world application, practical kind, and QA session. Next slide, please. I have taken a YouTube presentation on Section 54 relief. In this case, there was no possession was given, no possession was available to the party. As you know that when you sell the house, you can buy a new house 1 year before the date of document, and 3 years after. If you buy a new house, 2 years if it is an old house, 3 years, 2 years if it is an old house. In this case, there was no possession, no documentation, and no full payment is made. What law says, but still it was available. And this judgment is of a Bombay High Court, Bombay ITAT 9066 2025. The case is like that. And the case was relied on the basis of CBDT circular. And CBDT circular was of DDA in 1985. And this is and in the judgment, the court has also accepted High Court and Supreme Court judgment was also quoted. So anyone has an issue in this, they miss the bus, but you can still have it. Next slide, please. In one of the cases, when public issues come in 2019 during the allotment stage, they have made a violation by allotting the fund not from the bank account of a person who has been allotted a share, but they have been transferred the fund from the third party, and the same was rejected. So, and on the basis of that suo motu, they made a confession that this is a mistake done by them while allotting the share. In the case of this company, Hindustan Coca-Cola, there was a violation under Section 42, as the promoters did given the shares not on the basis of from which account should have been made. And in this case, not only the company were made liable, promoter were made liable, and the director were made liable. And so when you deal with ROC matter, follow the procedure. In this case, there was no loss happened to anyone because of the money transfer from X account to this Y account. They said there is a procedure lapse, it cannot be considered. Next slide, please. આજકાલ જન્માષ્ટમી હોય છે, લોકો પત્તા રમતા હોય છે, અને ખખડાઈને પહેલાં એવું હતું કે પોલીસવાળા તમને ગભરાવતા હતા કે ભાઈ તમે પત્તા રમો છો, કોઈન છે, તમારી પાસે પૈસા છે. સો યુ આર પ્લેઇંગ એ ગેમ. એન્ડ in one of the case in 2000 something 3 years back, police got an information
through someone. Within 10 minutes, they raided the place at Anand Nagar, Ahmedabad, and near Anand Nagar, Ahmedabad, and the criminal case was lodged, and the matter was put before judge, Mr. Desai, Honorable Judge Mr. Desai of High Court. He given the judgment that when you are playing a cards at some place where there is no profit motive, the intention is not to make a profit, even though coin is there, some money is there, some money is involved also there, but this is not for the purpose of making profit. In that case, it is not allowed as a criminal, and the FIR was quashed. And he again give one more rider that police got an information and they raided the place within 10 minutes. What was the hurry? When you want to take a search at some place, you need to have certain formality to be completed. So these are the three judgments which I have discussed. With this, we are going on Claude 5. 1, 2, 3, 4 is over. Shailesh, you just adjust your this thing. So you're working this thing. So let us applaud Shailesh Bhai for taking the first class here. We are thank you very much for wonderful talk. We are proud to see you in a flying color. Thank you. Young, dynamic, AI, C.S. Shailesh Badwania. Thank you very much, sir. Thank you. Great. So I just wanted to let you know that we have already covered nearly 80 to 90% of the Claude co-work and each and everything. Now we are going to have a nearly 10 to 20% only. So we may get, we need to learn today's skills, which you already, which some of you have already learned here. Okay. Hello. 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 Great. So we are starting our session and I have already taught you nearly of 80 to 90% of the Claude ecosystem generally. So now we are going to learn Claude. We are learning Claude Cowork and we have learned nearly 80 to 90%. Sir, one of you you were not present in the last class, but have you seen sir my last class? Sir, great. So in last class, I've taught nearly of MCP, what is MCP and each and everything, and also I've taught something, connect with Obsidian. But people had some query and they called me, so they told me that please, sir, uh, once more you teach that Obsidian part. They wanted to learn more about Obsidian because if you learn a Obsidian, then you can make your own knowledge base. And if you can make a knowledge base of your firm, so for example, then you may have your own assistants with you. Okay, so I want to teach once again Obsidian part, where I'll teach a little bit slow what is Obsidian and how do we connect Obsidian to our Claude Cowork or maybe Claude Code or any Claude ecosystem. So let me just teach you first what is Obsidian, sir. Sir, Obsidian is nothing but your life management tool. For example, if you want to manage your life, then what you do, sir? You organize your life. For example, you may manage your diary. We before computer era, we were managing a diary. Still, I am a little bit of a conservative person, so I still manage my each and everything inside my diary because I have a habit of writing. Okay, but people like who are tech enthusiasts and who is always working before the computer. For example, we as a chartered accountant, we go in our office, and in our office we always have our laptop or maybe in our desktop. We sit in our office and we have our desktop. So for that purpose, what we can do, if you want to manage your whole life, your schedule, your database, your each and everything. For example, a year before you have managed, you have your own diary. But now to find out that diary, you need to go to home and you need to come out that on a cupboard that you may have a diary. But if you are managing inside your laptop, this Obsidian, then Obsidian will let you know for your whole life kacha chitta.
So it is a great life management tool, not just a schedule management tool or not just a notes management tool. So for example, it's a one kind of a mixture of Google Docs. Have you seen, sir, Google Docs like a Word? Okay, like a Microsoft Word. Second thing, it's a mixture of calendar, Google Calendar or maybe Microsoft Calendar. Sir, third thing is a mixture of, let me tell you, mixture of Excel also. So if you are managing an Excel file, CSV file, each and everything, you can save it inside this one, and whenever you require, you can open it. It's a one kind of a small computer with you which manages each and everything, and it's a one kind of a software only, and it's available free of cost. And whatever you are going to write, generally it accept only markdown file. Which file, sir? Markdown file. Markdown file. What is markdown file, sir? Markdown file, sir. Have you seen the text file? Text file, notepad wala file. Okay. Inside you just open it, and you will find so many text only. But have you seen that somewhere in a between text there may be some kind of hashtag, star star, dash dash. Those have a meaning, sir. You don't know what is meaning. I'll teach you each and everything, but those have some kind of a meaning, sir. And those meaning in a markdown understand. For example, sir, you need to train your AI. Before, the AI that you are seeing inside your laptop or maybe anywhere in a chat GPT, those has been trained using data. Sir, what kind of a data they train? Sir, they do not train by giving data of a PDF of images, not that kind of a data they give to train the data generally 90% of the time. Sir, they give data in a markdown file. Which file, sir? Markdown file. For example, a whole archive of the internet. Whole archive of the internet, they may be in a terabyte, sir. They may be in a terabytes of data. They convert those terabyte data into markdown files. Why, sir? Why? Let me tell you why, sir. You are seeing an image file, or maybe you are seeing a PDF may have a heading. You can see it inside the PDF. But AI, if it's not a norm, if it's not a multi-language model, it's just a small language model which understand text only. And then how we will understand this is a heading, this is a heading 1, this is a heading 2, this part of a text is a highlighted one, or maybe this is a page breaker. How to understand, sir? It must have some kind of a format so that it can understand which between this star or between this hashtag, this is a highlighted part. Okay, so don't worry about. I'll show you a live example. Then you'll be able to understand a proper manner. So those kind of a things it understand very well. So when you convert a PDF or images into a markdown file, and then those markdown file you give to AI to train AI. Understand? So AI has been trained using generally 90% of the time markdown file. So if AI has been trained using markdown file, and then if I provide a markdown file to AI, then AI understand very well, sir. For example, I have been trained in English only. So if you are speaking with me Gujarati or maybe any kind of a Marathi language or any kind of a other language, then it is very hard for me to understand. But if you tell me directly, for example, you are a Gujarati or you are talking to me in a Gujarati, I understand little bit Gujarati, but you are talking to me in a Gujarati, and so what I do, I convert that Gujarati into English. Then I understand. For me, it's a better way. Or maybe you are speaking a Marathi, you are speaking to me Marathi. What I'll do, I'll put in between a converter or maybe a translator who will translate into English, and then I'll be able to understand the same way, sir. Same way. So if you are giving me any kind of a PDF or any kind of other files, then I will convert those files first into a markdown files, and then I'll use it for my understanding the same way, sir.
So same way to AI also. So whatever, for example, if you are giving a markdown file, so it is very easy. It will understand directly. But if you giving a PDF or image it, then AI itself first convert into a markdown and then it will understand. So the procedures for a conversion, it uses more tokens. Understand? It uses more tokens और हमारा पैसा खर्च होता है सर. तो इससे अच्छा बेटर में आई ऑलवेज यूज माय मार्कडाउन फाइल्स. कौन सी? Markdown files. So better you first convert free of cost converter available in the market. You convert all the file into a markdown file and then give it to AI. So आपका token का पैसा बचेगा सबसे पहले. Understand? And you will be having a more files because there is a token limit in AI. For example, a 1 million of a token limit. So you can give a 700, nearly generally 700 pages of book, and you can upload and ask AI that please explain me or summarize me this book, and it will be able to do it. But if you are giving a more than 700 or maybe 1,000 page or more than 1,000 page, depend upon the text and tokens only. So then it will not be understand a whole book. It will understand only up to a 1 million tokens only. So therefore, what it will do first, if you are giving a PDF, then it will convert. So it will use nearly of 100 to 200 millions of 100 of 200,000 tokens. Then you will be able to available only to 800,000 tokens only. Eh, Instead of I'm giving a PDF and if I'm giving a directly a markdown file, then it will use whole 1 million to understand the file only. You may not understand right now, but after seeing this in a practical manner, you will be properly understand. And the best part of the Obsidian is a file which it generates its markdown file only. So if Obsidian is generating and saving all things as a markdown, then for my AI, it will be very useful to understand those files. It's very easy to understand by my AI. So what I'll do, I'll use a life management tool called Obsidian. Okay. So how to install this Obsidian? It's very easy. Nothing. You go to Obsidian, go to Google and write Obsidian download. And then you download from here Obsidian download for Windows. I have already downloaded and I have with me Obsidian. I already taught this, but you people didn't understand a little bit more. You wanted to understand a little bit more because it's a very useful tool. Not just this to manage your life, but after connecting with AI, you can manage your whole knowledge bank. Like for example, you have a GST case loss with you or maybe income tax case laws with you, and you want to find out those case laws from your data knowledge bank only. You just connect this Obsidian with your co-work and you'll be able to query those data. You just go there and ask, I want each and every case laws which is related to ITC or maybe block ITC. So it will connect to my Obsidian database and it will query those knowledge bank and it will give you answer. Understand? So what I'll do, I'll open this app. See, sir, this is my Obsidian. Okay. So what I'll do, I'll connect this Obsidian to first I'll show you what is Obsidian and how to do it. Sir, it's a general normal, a little bit of training required, maybe a learning curve for this Obsidian is required because it's so reachful. Like for example, if you want to learn a word, then you can learn within a hour also a word. But if you want to learn in a more detail, then it requires a little bit of a learning curve. So let me just teach you a little small things which will be able to useful for in a future how to use this Obsidian. Sir, if you want to open a new file in a Obsidian, then what you do, a new note, you just open this new note. Okay, sir, what is this? Sir, as soon as you open this new notebook, it will show you like this one, untitled. And if you change this, and just put it that Nitin sir, if you just write Nitin sir, it will change. See,
The heading, this is a heading, and also the name of the file also has been changed here. Okay, so I have written here Nitin sir, and what I'll do, I'll convert some of the file. I'll convert some of the file in a markdown file, and after converting those markdown file, I'll put something here. Okay, just a second. Sir, it's better not to use. Just ask anyone. It's better, na? Yeah. So what I'll do, I'll go to my any AI. I'm not going to a normal AI. I'm going to just a normal AI. Like for example, I'm going to a Gemini, and after going to my Gemini, I'll ask. I'll go to some of the YouTube videos. I just want to show you that how you can use this Obsidian. For example, I'll search it out. Safari case law GST. Okay. See, this is a Safari case law. So what I'll do, I'll just copy this one, share, copy, and I'll go to Google and I'll tell convert this into text into markdown file, whole transcription. So it will convert this whole transcription of this video into a markdown file. Which file, sir? Into a markdown file. I want one markdown file of above. Let me just sit here. Sir, see, this has been given a markdown file, and what it does, sir, it's just one kind of a this kind of a markdown file, sir. If you open this, sir, it will show like this one only. I'll download it. If as soon as I download it, it shows generally a text file. How do a text file show? .txt, but this file sees as a .md file, and it's in a one kind of a view. For example, a number one heading, it's called a one hashtag. So if anything has been written after hashtag, that means heading one, main heading. For example, this double star, and after this double star, that means it's a highlighted part. Okay, and if you come down and if there is a written to hashtag, that means second heading, and three means third heading, and this one is a bullet point plus this part is highlighted. Understand? So there is some meaning. See, this 3 dash means a page breaker. What it means? So there is some kind of a meaning which AI understand very fast. Otherwise, what have to the AI has to does, and yes, it has to see these images, see the PDF. So for to see and watch and each and everything, a tokens has been used by my AI, and if it used my tokens, then it is bad for me because it cost. Okay, see, for example, this is a one kind of a table. Okay, this is a one kind of a table only. Sir, this one kind of a table, what it does nothing, but there is some meaning. This is, this is a first column. Understand? And after this one is the first column. So below this parameter, there must be something is coming below, na, in a table. The same way you'll be able to understand, sir. Don't worry about it, sir. For example, what I'll do, I'll just Control A, Control C, or I'll go to normal Obsidian, or I'll delete this one and I'll paste here. Okay.
See, as soon as I put it, there is a one hash. As soon as I delete one hash, it becomes a normal one. And as soon as I put just one hash, it becomes my heading one. Okay, understand? If I go normally, how it's showing, it's beautiful, na? Now, without any hashtag, without any star. But if I want to write in a normal manner, if I go to a double star, then it will a highlighted portion. Understand? uh, if I go to here, there will be showing that there is a two hashtag here. So that means a heading 2. Understand? So this is called a markdown file, which has AI has been trained using markdown file. So if I give markdown file to AI, then AI understand very fast and it responds me very fast and also uses less tokens. So that's why I always want to connect this Obsidian to my AI, which has my knowledge bank and everything, sir. So what we'll do, we'll just save this file, Control S, and we will ask something. Okay, self use property. Okay, I'll just copy this one and I'll just see, I have so many files here. So now if I go to a relationship graph view, so if you see now all the files are somehow, how it's connected, how it's not connected, it will show here. Understand? This file is connected, but there is no connection between this file. You can make it connection, sir. If you make a connections, then those connections are very good for understanding of AI also, and for your understanding also, and you're managing a life, sir. It requires a little amount of time to understand this whole things. Okay, so if see, this file has been created just now, na? So I'll click it, this one, it's open. Understand? So now what I'll do, I'll just I where this has been saved in the Shailesh folder. So where is my Shailesh folder? Is folder is download Obsidian Shailesh folder. Okay, if you can see, the path of my folder is C users Wadwania downloads Obsidian and a Shailesh folder. Okay, there is a Obsidian folder inside my download folder, and inside that Obsidian folder there is a Shailesh folder where I've saved each and everything. Okay, so what I'll do, I'll just close this one. Sir, this is a life management tool and it has all the features that you can't even imagine. It's a whole managing life features. But why right now I want to connect this to my AI. For example, you have converted 1,000 case loss of your GST or maybe of income tax. Okay, so now you convert first all those 1,000 case loss into a markdown file. Which file? Markdown file, and save it inside one folder. Where you save it? One folder. Okay, of a Obsidian folder. So what I'll do, I'll just go to my Claude Cowork, and after going to my Claude Cowork, I'll put it in new one, and I'll just choose those folder which has all the markdown file. For example, your case loss file. What right now what I'll do, I'll just connect with my Sales folder where my old markdown files are there. When, sir? I have just connected here. After connecting, I'll ask whether ITC is blocked for self-use properties. I'll just ask. Okay, let's see from where it giving me answer. It asking me, do you want to allow this folder? Yes. From where? Huh? Let me just choose the medium also, efforts.
See, listing your files on your computer. It's going to a Shailesh Obsidian, and it is going to my computer only, and it's fetching all the answer from my computer only. See, based on your Obsidian knows Nitin sir, the name of this that file I have put it in Nitin sir. Safari retrieves case analysis. Here the position of ITC for self-use properties. All explanation and each and everything has been given. See, one caveat. This is your own class note transcript. Good for internal understanding, but for a client opinion or submission, I'd recommend it to cross-check against the certified copy of Safari Retreat. I can copy a whatever the certified copy of judgment of a Safari Retreat, I can convert into a markdown file, and also I can put it inside it, and I'll tell that please cross-check each and every file. It will understand each and every file, and after giving after only it will give me answer. Understand, sir? So now, for example, whatever file you have inside your folder, it will query it and it will come out the answer from those file only. So your, sir, sir, people ask me before I want to make my own knowledge base, and inside those knowledge bank, I could save inside my laptop only, and I don't want to upload each and everywhere. Sir, you can do this one. Understand? Yeah, so you made your own AI at free of cost. Why? Because I have taught you. Free AI. And you can learn from here. It's a very easy. So now you understand what is Obsidian and how we can query the knowledge bank from Obsidian. Understand? Can we go ahead, sir? Yes, yes. Sir, great. Sir, great. Now I'm going to teach you now what is skills and each and everything and how we can use it. Great. So now I'm going to teach you what is skills and each and everything. But before that, I have to make a one kind of a explanations and what, how, and why we are using skills. So let me explain you what is exactly skill. For example, sir, you have a 30 years of experience. How many of us experience? 30 years of experience, and in that 30 years of experience, you are experienced a chartered accountant with income tax knowledge. Which wala knowledge? Income tax knowledge, and income tax will be specifically for appeal ka knowledge. Okay, you have a 30 years of experience in income tax appeal, sir. Okay, a real knowledge. Okay, so you know income tax act, you know so many case laws. Okay, and if you don't know case laws, you connect with case laws libraries. Okay, paid tools are available in the market, and you ask and it will give you the answer. Okay, third thing, you have knowledge of ICI guidelines, that how you have to write a appeal. Other than that, you have your own style, sir. Because you have 30 years experience of this appeal writing knowledge, that you have your own style of writing appeal. Okay, so those all the experience and knowledge you possessed, what you'll do, sir, you'll write in a one book. After writing in that one book, what you will do, what we will do, we, for example, if I want to learn your experience, then I can, after reading that book and having a nearly of 2 or 3 years of experience using your knowledge bank, I can acquire the knowledge that you may have within 2 to 3 years, sir. Understand? So you have written a one book. So many people have written this book, their life experience, and we as a people, we are reading those books
for learning purpose only. That whatever they have done to achieve success, or whatever they have done to do a different kind of a things, so we can also understand those things a very fast manner, because they have experience of whole life, but we cannot spend a whole life na. The same way, sir, same way AI has its own brain. I have already taught you a long back, a year back, in the 16 lecture that I took up before. In those lectures, I have already taught you that what is AI and how it's generally it has been inspired from human mind only. So whatever the human mind it's doing, सर एआई का मतलब ये होता है कि बाय इट मिमिक्स ह्यूमन कॉग्निशन. So whatever the human is doing, it is trying to do it. That means it's inspired from my mind only. Okay, it's a neural network, deep neural network. So those deep neural network inspired from the human mind only. So whatever the my human mind is doing, like thinking, like connecting dots, each and everything has been done by generally my AI only. So for example, AI has its own mind. AI has now knowledge also, but not a proper knowledge. So what I'll do, whatever your experience over 30 years of experience over writing a bill, I'll write into a one book and I'll convert that book into a skill.md. किसमें? skill.md में. अब मैं नॉर्मल मेरे एआई के पास जाता और उसको बताता कि भाई प्लीज राइट एन अपील. मैं नॉर्मल मेरे चैट जीपीटी या मेरे क्लाउड के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं कि प्लीज राइट एन अपील. क्या करता हूं मैं? राइट एन अपील. ओके, तो उसको मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, सब कुछ दूंगा. अभी आपने देखा ये कोवर्क तो उसके पास पूरा नॉलेज है, यानी उसके पास मेरे कंप्यूटर का भी एक्सेस है, उसके पास मेरे सब कुछ का एक्सेस है. उसको मैं मेरे कंप्यूटर मेरे क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट का एक्सेस दे दूंगा और बोलूंगा कि भाई इसमें से तू अंडरस्टैंड कर और अपील लिख के आ. सर वो लिख के तो आएगा, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको भी अच्छा लगता है, पर सर के पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है. वो देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि भाई ऐसी अपील तो बकवास लोग लिखते हैं. मुझे अच्छा लगा था क्योंकि उसने बढ़िया सा फॉर्मेट दिया था, बढ़िया से केस साइटेशन दिए थे, हेलुसिनेट करता है सर, वो सब कुछ करता है, तो उसमें मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था. पर सर के पास जो एक्सपीरियंस था, अगर वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये तो बहुत बकवास अपील लिखी है, इससे अच्छा तो मैं लिख देता. पर सर के पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो सर को ज्यादा जल्दी पता चल गई. तो अभी मैं क्या करूंगा, जो सर का जितना 30 साल का एक्सपीरियंस है उसको मैं एक बुक में लिख दूंगा और बुक का नाम दे दूंगा skill.md. अभी मेरे नॉर्मल एआई के पास जाऊंगा और नॉर्मल एआई को जाके मैं बोलूंगा कि भाई राइट एन अपील यूजिंग सर्च skill.md. क्या बोलूंगा? राइट एन अपील यूजिंग सर्च skill.md. जो अभी मेरा एआई है ना, वो अपील लिखेगा, कौन से इंस्ट्रक्शन से लिखेगा? वो इंस्ट्रक्शंस जो सर ने दिए हैं, जो सर ने बुक में लिखे हैं कि भाई मैं जब अपील लिखता हूं तो फर्स्ट स्टेप ये करता हूं, सेकंड स्टेप ये करता हूं, थर्ड स्टेप ये करता हूं. वैसे ही वो मेरा एआई अभी वैसे ही अपील लिखेगा. तो अब वो जो अपील लिखेगा उसकी जो पूरी स्टाइल होगी, जो पूरा अलग होगा सर, और वो अपील लिखने की उनकी स्टाइल होगी, वैसे अपील लिखेगा तो वो मुझे सिर्फ नहीं, सर को भी अच्छा लगेगा. सर बोलेंगे कि चलो अभी 80 से 90% तो अच्छा काम कर रहा है, पहले तो 10% भी नहीं करता था. भले मुझे लगता था कि बहुत अच्छा काम किया है उसने, 100% अच्छा काम किया है, पर सर को तो पता चल जाता था क्योंकि सर के पास नॉलेज था. अभी सर बोलेंगे कि नहीं, पहले तो 10% भी अच्छा काम नहीं किया था, अभी तो उसने 80 से 90% अच्छा काम कर दिया. वैसे वो काम करेगा सर इफ यू आर यूजिंग अ skill.md. Then what is skill.md? Skill.md is nothing but one kind of a instructions which has been given, which we give to AI. For example, हम लोग क्या देते हैं? प्रॉम्प्ट देते हैं. तो जैसा मेरा अच्छा प्रॉम्प्ट हो अच्छा काम करेगा सर, पर प्रॉम्प्ट होगा 1 या 2 पेज का, पर आपके तो जो आपका एक्सपीरियंस हो तो 2-3 हजार पेज का होगा. तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं स्किल्स बना दूंगा और उसको एक बार खाली इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि ऐसे तुझे काम करना है. फॉर एग्जांपल, तुझे अपील लिखनी है तो तुझे केस लॉज लाने के लिए तुझे जाना होगा टैक्समैन की वेबसाइट पे, और टैक्समैन को मैं कनेक्ट करवा दूंगा. जब लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा ना एमसीपी,
बस। तो मैं टैक्समैन को मैं कनेक्ट करवा दूंगा एमसीपी से। सर एमसीपी मिलता है टैक्समैन का, पैसे से मिलता है, टैक्समैन देता है। तो मैं क्या करूंगा, अब उसको बोलूंगा कि भाई तुझे ऐसे 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 अपील लिखनी है, और तुझे जब केस लॉ सर्च करना है तो तुझे टैक्समैन की वेबसाइट पे जाना है। और वेबसाइट पे कैसे जाना है, यूजिंग एमसीपी, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे। तो अभी वो टैक्समैन पे जाएगा और केस लॉ से वहां लाएगा। फिर फॉर्मेट भी कैसे उसको देना है, तो मेरे स्किल्स में दिया गया है कि फॉर्मेट यू हैव टू डू यूजिंग आईसीआई का गाइडलाइंस ओनली। तो आईसीआई का गाइडलाइंस वाला फॉर्मेट यूज करेगा। फिर रिसर्च कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, सब कुछ सर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करेगा। और जो अपील लिखेगा ना, वो बहुत बढ़िया होगी सर। अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं स्किल डॉट एमडी सर। क्या बोलते हैं, स्किल्स डॉट एमडी। जो मेरा एआई उसको प्रॉपरली फॉलो करेगा ईच एंड एवरी टाइम। जब भी वो कुछ काम करेगा तब वो हेल्यूसिनेट कर देता था। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ काम कर लेता था। उसको अपील लिखने का बोला तो अपील तो लिखेगा अपन अपने हिसाब से, यूएस वाली अपील लिख के आ जाएगा, क्योंकि उसके पास तो सब नॉलेज है। मैं चाहता था इंडिया की स्टाइल में, इंडिया के लॉ को समझकर, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जाके ही उसको केस लॉस लाने हैं, या हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। वो सब इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो नहीं कर पाता था, क्योंकि मैंने दिए ही नहीं थे। मैंने तो सिर्फ क्या बोला था, अपील लिख दे। मैं प्रॉम्प्ट में बोल बोल के कितना बोल पाता सर। तो मैं उसकी जगह, प्रॉम्प्ट की जगह अभी ऐसा बड़ा सा इंस्ट्रक्शन बना दूंगा जो सर का पूरा कच्चा चिट्ठा वाला एक्सपीरियंस होगा, विथ द नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स। अंडरस्टैंड। तो वैसे वो काम करेगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा सर। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या करेंगे सर, एक एक सबसे बढ़िया स्किल्स बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे सर, स्किल्स। सबसे पहले स्किल्स बनती कैसे है, तो हम लोग ये जो मैं बोला ना अभी, वही स्किल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, वही स्किल बनाएंगे, इनकम टैक्स की अपील वाली स्किल्स बनाएंगे सर। ओके। तो कैसे बनानी है सर, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं जाऊंगा मेरे क्लॉड के पास, क्लॉड में जाके न्यू चैट, और यहां पे जाके सर स्किल्स बनाने के लिए भी देयर इज वन स्किल्स। क्योंकि स्किल हम लोग, अगर मैं होता आई एम स्किल क्रिएटर, अगर मैं मेरा एआई, मैं कोडर होता और मैं स्किल्स बनाता होता, तो अगर तो उसको बनाने के लिए मैं भी खुद एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता होता, जो एंथ्रोपिक ने बनाया है सर। स्किल्स का फॉर्मेट किसने बनाया है, एंथ्रोपिक ने, और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को उसने दे दिया है। इट हैज अ मेक ओपन सोर्स, तो ईच एंड एवरीवन कैन यूज इस। गूगल भी यूज करेगा सर, चैट जीपीटी भी यूज करेगा, और जितने भी ग्रॉक भी यूज करेगा, सब एआई यूज कर पाएंगे। तो एक ही बार मुझे स्किल बनानी है, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ईच एंड एवरी एआई कैन बी यूज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी स्किल्स बनाएंगे, और स्किल्स का नाम क्या देंगे, आईटीआर अपील। ओके। और वो स्किल्स बनाने के लिए भी देयर इज अ स्किल क्रिएटर स्किल। कैसे सर, यहां पे आपको स्लैश लिखना है, और आपको लिखना है स्किल। क्या लिखना है सर, आप देख रहे हो यहां पे एक स्किल क्रिएटर करके एक स्किल आ चुकी है। अंडरस्टैंड। मैं इसको टाइप करूंगा, देखो यहाँ पे स्किल क्रिएटर की एक स्किल आ चुकी है। सबके पास होगा सर, ये सबके एआई में होगा। नॉर्मल मेरा, अगर मैं वेब बेस्ड पे भी क्लॉड यूज करता हूं, तो भी मुझे ये स्किल क्रिएटर वाली स्किल मिल जाएगी सर। ओके। अंडरस्टैंड। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि भाई एक इनकम टैक्स अपील लिखने की स्किल मुझे बना दे। अंडरस्टैंड। थोड़ा सा फास्ट काम करवाएंगे इसको, और ये अच्छा काम नहीं करेगा, पर हाँ अगर आप घर जाके शांति से बैठ के इसको प्रॉपरली काम कराओगे, तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर देगा आपका। बस यही प्रोसीजर, यही है कि स्किल बनाते कैसे है। So make one skill which is a one kind of a skills who has been used by a experienced chartered accountant who has a minimum 30 years of experience of writing an income tax appeal. And in that appeal skills, what it does, I give access of my whole client's data, and it writes and it understand whole the data, and after understanding it write an appeal in the format of ICI guidelines, that how to write an income tax appeal. And it uses all the knowledge bank and knowledge base of income tax India 1961. And for all the case laws, you have to connect it into a taxman
MCP server. For that, I will connect a Taxman MCP. But if I have not connected Taxman MCP, then you can web search also. But if you do a web search, then you have to give me a citations that where from where these case laws you have picked up. So make a whole skill which does this. Understand, sir? This. See, then skill create a skill. It will take time, but let it has do each and everything. So what we will do, we will go ahead and I'll show you how to install skill first. Okay, so what we will do, I'll just go into a new one. And how do we install skills? You have to go to a customize, and you just click this skill button, and after clicking this button, you have to upload that skill here. Understand? For example, there are so many skills already has been made by Anthropic, and it is giving me a free of cost. For example, web artifact builders, canvas designers, skill creator, those has already been installed. Morning. So what is morning? Morning, it's a one kind of a skill that I have made, that what we have to do in the morning. So see this skills, this is a one skills only, and what this skills does, it's a one kind of a learning environment for me. If I invoke this skill and tell that explain me something जो भी मुझे understand करना है वो ऐसे मुझे understand करेगा. For example, it will guide me as an intellectual understanding. So learning how or why something works, because if we understand how and why of anything, we'll be able to learn in a better manner and not getting tasks done for us soliciting Claude's judgment. Okay, understand? So explicit learning request, teach, explain, ELI 5, walk me through, quiz, flashcard, each and everything. So first let me just install this skill. Sir, how do we install this skill? Sir, as soon as you click to that skill, you'll be able to see this install button. So you click this install button, it will install my skill inside my Claude Cowork. See, it has already been installed. So if I go outside, now they must see learn skill is already been here now. Understand? And how do I invoke this skill? For example, if I want to learn something, then what I'll do, I'll just slash and learn. Okay, and after learning, for example, I'll ask him to make me understand how income tax is calculated. Make me understand how this income tax calculated as per Indian Income Tax Act. See, Ren skill learn.
As a CA, you already know the mechanics code. So let's keep the basic diagnostic. Tell me instead what's actually prompting this. Are you looking to teach client student to simplify way? See, but you understand what I'm saying here. Nothing but skills is a one kind of a instructions, and those instructions has been built by so many people, and you can use it a free of cost, and you can browse from here. Is customize. You go to a customize and go to skill, and you can add from here also. Upload a skills or a browser skill. There are so many skills available in the market already. These are the skills. Let's see if that skill has been already been done or not. Income tax appeal skill. See, this skills has been made already been made by Claude. So what I can do, I can download or I can save as a just income tax appeal drafter. Na? So for example, if I go to right now in a customize and go into a skill, there is no income tax drafter skill. Na? Okay, so I'll go outside and just click to save skill. Great. So now if I go to a manage, there must be something like an income tax appeal drafter. Understand? Yeah. You can customize with your own format, your style, your instructions. So you just need to ask to a one proper person that how he writes appeal, in which format he writes, or just do one thing. You may have 1,000 type of appeal which has already been used by your firm. Okay, different appeal, a best of the best appeal, 1,000 appeals. You give all those up, you first convert all those appeal into a markdown file, and you upload all the appeal and tell that now you have to draft appeal accordingly in this format only. So it will understand all 1,000 appeals, and the best of the best way it will create appeal like that only way. Understand? So for example, I'll go to a new one, and now if I click a slash button and income tax, see income tax appeal drafter has now is here. And what it does, draft an income tax appeal as per Form 35 and Form 36 ITET, including statement of facts, grounds of appeal, and detailed written submission with case law. Use these skills whenever the user asks to draft, prepare or review an income tax appeal, grounds of appeal, statement of facts, submission of before. Each and everything has been done by here. For example, I'll just click this one and tell that write a demo appeal. It will write a demo appeal. Sir, so what we have learned, sir, first we have learned MCP, okay, then we have learned skill, sir. So there may be some kind of a things that you want to do in a rule based only. For example, you may have a Python code or a SQL code or maybe a JavaScript code or maybe any kind of a code. For example, you want to do in a similar manner only. For you want to calculate income tax, then you are using a Python code or maybe JavaScript code or maybe SQL code. You may have a one format, for example, tally format, and you want to convert that tally format into a specific dashboard of a CEO. Okay, then you have that code. Sir, now you want to bundle those things. Which one? For example, if you see inside this skill, I have not connected to Taxman. But if I want to connect to Taxman, there must be MCP server that I should connect. MC, what is MCP? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया है। जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने सिखाया एमसीपी क्या होता है, एमसीपी कनेक्ट कैसे करते हैं। तो जो एमसीपी कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर जो ज्यादातर कनेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई गो टू डाउनस्टेयर, तो देयर इज अ कनेक्टर्स, जीमेल का कनेक्टर, गूगल ड्राइव का कनेक्टर, एनएटएन का कनेक्टर, क्लॉड इन क्रोम,
ये गिटहब का कनेक्टर, माइक्रोसॉफ्ट का कनेक्टर, नोशन का कनेक्टर, जो भी मेरा कनेक्टर है, कितने सारे कनेक्टर है सर। यहाँ पे मैं जाऊंगा तो इतने सारे कनेक्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये तो एंथ्रोपिक ने दिए ये वाले कनेक्टर्स है। अगर आप बाहर की दुनिया में जाओगे कहीं ढूंढने, तो आपको इससे 4 गुने ज्यादा मिल जाएंगे कनेक्टर जो ऑफिशियल नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू कनेक्ट टू अ कैनवा और मे बी एनीवेयर इफ आई वांट टू कनेक्ट टू अ टेक्समैन, तो भी मेरे कनेक्टर लगते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था कि जोहो से कनेक्ट करना है तो जोहो का भी कनेक्टर है। तो मेरा जोहो से भी कनेक्ट हो सकता है, जोहो सीआरएम, जोहो डेस्क, जोहो बुक्स, जोहो एनालिटिक्स, जो भी कनेक्ट करना है सर। फॉर एग्जांपल और किसी और के साथ कनेक्ट करना है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्विक बुक। सर क्विक बुक का भी है, देखो सर, इनटूइट क्विक बुक, क्विक बुक का भी कनेक्टर है। सर आप सब कनेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूं टेक्समैन, तो टेक्समैन का इधर नहीं मिलेगा पर ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। मैं अभी नॉर्मल टेक्समैन का कनेक्टर, टेक्समैन की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको। ज्यादातर टेक्समैन की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां पे मिल जाएगा आपको। इसको ढूंढना पड़ेगा पर मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ये टेक्समैन का एक कनेक्टर होता है, वो पैसे से मिलता है सर, वो पैसे लेता है और सब्सक्रिप्शन भी लगता है। तो सब्सक्रिप्शन भी लेना होगा, उसके पैसे भी देने पड़ेंगे, तो आपको एक कनेक्टर दे देगा। और कनेक्ट करने के लिए आपको फिर वहां से कनेक्ट करोगे, तो जैसे मेरा ये अपील ड्राफ्ट करेगा, तो अपील ड्राफ्ट करने के लिए अगर मैं इंसान होता, आपके पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो केस लॉज याद है वो तो लिख लोगे। पर नहीं याद है तो क्या करोगे, टेक्समैन की वेबसाइट पे जाओगे और वहां पे सर्च करोगे, और सर्च करके करोगे। सर ये भी वही करेगा सर। एक बार मैंने उसको एमसीपी से कनेक्ट कर दिया, तो ये सर स्किल्स में नहीं आएगा। एमसीपी कनेक्ट नहीं होगा स्किल में, स्किल में सिर्फ मार्कडाउन फाइल होगी। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जेसन फाइल और सब कुछ चाहिए, कोड चाहिए। तो ऐसा कुछ हो जो सब कुछ बंडल करके दे दे। जैसा मेरा एक सॉफ्टवेयर है, तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या करता है सर, उसमें पाइथन कोड भी है, फिर वो जीमेल के साथ और मेरे इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी कनेक्ट भी करता है। फिर उसको मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिए कि तुझे ऐसे फॉलो करना है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनता है। सर ये सब कुछ अगर आप मिक्स करोगे, स्किल मिक्स करोगे, एमसीपी उसके साथ मिक्स करोगे, फिर कोई कोड मिक्स करोगे, फिर आईसीआई का जो मैंने बोला फॉर्मेट, वो फॉर्मेट को असेट्स बोलते हैं सर इसमें, तो वो असेट्स भी आप इसको मिक्स करोगे, तो एक पूरा बंडल हो जाएगा। क्या होता है सर, खाली स्किल नहीं, पूरा बंडल हो जाएगा। अगर एक बार वो बंडल बन गया ना, तो बंडल बनने के बाद उसको बोलते हैं प्लगइन। क्या बोलते हैं, प्लगइन। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया है सर, इफ आई गो टू दिस ईयर, मैं अभी इधर जाऊं, मैं इसको मैं बंद कर रहा हूं, और बंद करने के बाद मैं इधर आ रहा हूं वापस से कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आने के बाद मैंने कल कनेक्टर सिखा दिया था ये एमसीपी वाला, आज मैंने ये स्किल सिखा दिया। अभी एमसीपी यानी ये कनेक्टर स्किल्स, मेरा कोई और फॉर्मेट हो, यानी कोई असेट्स हो, या फिर कोई मेरा स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट मतलब पाइथन कोड हो, वो जनरेट कर, वैसे कुछ काम करवाना हो, सब कुछ मिक्स करके मैं प्लगइन बनाऊंगा। प्लगइन भी ऐसे ही बनता है सर, प्लगइन बनाने की भी अलग से एक स्किल्स है, उसको वो स्किल्स यूज करनी पड़ेगी। जैसे स्किल क्रिएटर यूज की हमने स्किल बनाने के लिए, वैसे प्लगइन भी बनाने के लिए, पर इसमें नहीं होगा सर, आपको उसको क्लाउड कोड यूज करना पड़ेगा सर, उसके लिए अलग से। शायद सोच रहा हूं कि मैं वो भी लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल दूं, पर नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा उसके लिए पेड पेड वर्जन भी बना सकता हूँ शायद। देखते हैं सर, अगर फ्यूचर में देखते हैं, एक एक वीक के बाद देखेंगे, तो देखेंगे। पर तब तक अगर मैं जब क्लॉड कोड सिखाना चाहूंगा तो वो पूरा पेड होगा सर, उसके लिए मुझे मिनिमम $100 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो $100 का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मुझे उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसे के लिए मुझे लोगों से कनेक्ट करके यहाँ पे बुलाना भी पड़ेगा, और बुलाने के बाद उसको पेड भी रखना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको खर्चा मैं भी कर पाऊंगा और उनसे भी ले पाऊंगा, तभी जाके होगा। उसके बिना मैं आपको पूरा सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके मिनिमम 3-4 लेक्चर रहेंगे, या फिर पूरे एक 1 डे का लेक्चर रख देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, पर वो पेड रहेगा सर। तो क्योंकि मुझे उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, अच्छे वाला $100 वाला मिनिमम।
तब जाके मैं आपको पूरा सिखा पाऊंगा। तब ये प्लगइन भी होता है सर। तो ये प्लगइन आपने देखा सर, ये पूरा प्लगइन, उसमें मेरा एमसीपी होगा, स्किल्स भी होगा, कनेक्टर्स भी होगा, फिर पाइथन कोड भी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया एक बैंक ऑडिट स्किल। कौन सी स्किल सर? बैंक ऑडिट स्किल। अबे बैंक ऑडिट स्किल, अगर बैंक का कोई डेटा होता तो उसको एनालिसिस करना है मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो एनालिसिस करना है तो उसके लिए मुझे लगता है पाइथन कोड या एसक्यूएल कोड। ओके, तो मैंने एक बैंक का स्पेसिफिक फॉर्मेट लिया और उसको, जो डेटा एनालिस्ट करता है ना, एनालिस्ट करने के लिए, फ्रॉड ढूंढने के लिए, उसको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के लिए, तो उसके लिए मैंने पाइथन कोड जनरेट करवाया था। क्या करवाया था? पाइथन कोड। फिर उसका प्लान बनाना हो मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो उसके लिए स्किल्स एंड असेट्स बनाई। क्या बनाया? स्किल्स बनाई कि भाई तुझे ऐसे ऐसे रिसर्च करना है प्लान बनाने के लिए, और ऐसे प्लान बनाना है, और प्लान बनाने के बाद तुझे ऐसे एक फॉर्मेट में प्लान मुझे पूरा प्रिपेयर करके देना है। फिर रिपोर्टिंग के लिए भी वैसे ही होगा कि भाई तूने जो एग्जीक्यूट किया, तूने जो प्लान बनाया, उसके हिसाब से तुझे रिपोर्टिंग भी करना है। तो रिपोर्टिंग के लिए एक फॉर्मेट भी है, और कैसे करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लगता है। तो उसके लिए मैंने स्किल्स भी बनाई हुई है और असेट्स भी डाले हुए हैं। ओके, तो अगर इफ आई जस्ट क्लिक दिस वन, sir, see, this is a bank audit skill, which what it does, sir, guidance, according to a guidance node of the ICI, वो सब कुछ काम करेगा। और क्या करेगा सर? वो पहले प्लानिंग प्लानिंग वाला पूरा काम कर देगा। फिर ये जो एनपीए कैलकुलेशन होता है, एडवांसेस का कैलकुलेशन होता है, डिपॉजिट का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, सर उसके लिए मुझे लगती है स्पेसिफिक पाइथन कोड कैलकुलेशन के लिए। तो वो पाइथन कोड इसमें है सर। ये क्या क्या रन करेगा? पाइथन कोड भी रन करेगा। और जैसे ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद ये स्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल ये पाइथन कोड आप देख रहे हो, डॉट पी वाई, पाइथन कोड, एनपीए, ड्राइंग पावर, कैलकुलेट, ये सब कुछ सर। ये सब कुछ स्किल है कि भाई ये आरबीआई के नॉर्म्स क्या होते हैं, सब कुछ उसका पूरा कैलकुलेशन करने से पहले उसको समझना तो पड़ेगा। समझने के लिए क्या करेगा सर? मैं इंसान हूं तो मेरे दिमाग से समझता हूं, तो इसको समझने के लिए ये वाले इंस्ट्रक्शंस डॉट एमडी में दिए, देख रहे हैं सर? ये डॉट एमडी क्या होती है? मेरी स्किल्स फाइल होती है। जो मार्कडाउन फाइल में आज सुबह में सिखाया था, वो स्किल्स किसमें होती है? मार्कडाउन फाइल में। फिर उसका कैलकुलेट करने के लिए, जो मेरा डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए मेरे को पाइथन स्क्रिप्ट लगेगी। क्या लगेगा? पाइथन स्क्रिप्ट, जो यहां पर है सर। एलएफएआर चेकलिस्ट कैलकुलेशन, मटेरियलिटी कैलकुलेटर, एमओसी टेम्पलेट जनरेटर, ऑडिट प्रोग्राम जनरेटर, प्रोविजन कवरेज रेशियो, एसएमए क्लासिफिकेशन टूल, रन ऑल कैलकुलेटर्स, ये सब कुछ एक बार सबको फिर एक चेक करके ये यहाँ पे एक बार कर देगा। सर ये एंगेजमेंट कैसे एस्टेब्लिश करना है, सब कुछ ये पूरा उसके पास गाइड है। अगर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स ओनली इट विल गाइड। और ये स्टेप उसने फॉलो कर लिए, यानी जो मेरा बैंक ऑडिटर होगा जिसके पास मिनिमम 20-30 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो जैसे काम करता है वैसे ये काम करेगा सर। देख रहे हो सर कि भाई प्री ऑडिट प्लानिंग कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ इसमें है सर। चेकलिस्ट कौन से पहले देख लेने हैं कि ये सब कुछ ऑलरेडी मेरे पास है, ये कैलकुलेट करने के लिए। ये सब चीजें मेरे फोल्डर के अंदर है, क्योंकि मैं इसको फोल्डर का एक्सेस देने वाला हूँ। नहीं है तो मुझे बोलेगा कि ये चीजें मेरे पास नहीं है, स्टार्टिंग में ही बोल देगा, प्लानिंग करने के टाइम पे ही बोल देगा, प्लानिंग भी जनरेट करके दे देगा। सब कुछ 32 फाइल्स है इसमें, 32 सर, 32। देख रहे हो सर? सर ये एंगेजमेंट लेटर वाला टेम्पलेट मैं बोल रहा था ना, असेट्स, उसको क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। देख रहे हो सर? ये असेट्स के अंदर है ऑडिट रिपोर्ट के टेम्पलेट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या है कि एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ वाला क्या आएगा, क्या क्या चीजें आएगी, ऐसे तुझे लिखना है, सब कुछ। ये ऑडिट रिपोर्ट का टेम्पलेट है, टेम्पलेट के हिसाब से वो रिपोर्ट बनाएगा। सर एडवांस का ऑडिट चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कैसे करना है, फिर रेफरेंसेस, यानी ये रेफरेंस कौन से है, जो स्किल्स है जनरली मेरी। फिर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कौन सी होती है? जो कोड्स होते हैं। 32 फाइल के हिसाब से मेरा पूरा काम करेगा। और उसको अभी ब्रेन मिल चुका है, यानी एआई भी मिल चुका है, और उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं जो वो इंस्ट्रक्शंस एक 30 साल का बंदा जो काम करता था बैंक ऑडिट का, वैसे वो काम करेगा। अभी दोनों मिक्स हो चुका है, ब्रेन एंड एक्सपीरियंस।
तो वो जैसे काम करेगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, और ये मेरे एक क्लिक में मेरा प्लान जनरेट हो जाएगा, और एक क्लिक में मेरा पूरा डेटा एनालिसिस हो जाएगा, सब कुछ फ्रॉड फ्रॉड सब कुछ वो पकड़ लेगा सर। और पकड़ने के बाद मुझे मेरा, मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा, रिव्यू करने के बाद उसको बोलूंगा कि भाई ये सब कुछ चेंज करना है कि नहीं करना है। रिव्यू करने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक क्लिक में मेरा रिपोर्ट भी जनरेट करके दे देगा। एजेंटिक एआई भी ऐसे ही काम करता है। एजेंट एआई पे ऐसे ही काम करता है सर। समझ में आया सर? देखिए देखिए सर, ऐसे बनाता है वो अपील 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 लिखने को डेमो को बोला था ना मैंने, ऐसे लिख रहा है। ये इतनी अच्छी नहीं लिख रहा है, पर उसको फिर हमको पढ़नी है, एक दो चार 10 बार 15 बार, तो उसको धीरे 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 स्लो 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 करके, जब तक वो मेरे प्रॉपरली अकॉर्डिंगली काम नहीं हो जाता है सर। इसके लिए तो मेरे को सॉफ्टवेयर लगते थे बड़े बड़े, लाख 2 लाख वाले सॉफ्टवेयर नहीं, वो बिग फोर अफोर्ड कर सके वही सॉफ्टवेयर लगते हैं इसमें। अपील लिखने के लिए तो आपको अपने हाथ से ही लिखना पड़ता है, नहीं तो फिर अपने वर्ड फाइल अपना बनाइए और सब कुछ करिए। इधर ऑटोमेटिक लिख देगा एक बार आपने बनाया है तो। 2 4 दिन 5 10 दिन शांति से बैठकर बनाना तो पड़ेगा एक बार आपको। स्किल्स कैसे बनानी है? कुछ भी नहीं, स्लैश स्किल क्रिएटर, फिर आपको जो करवाना है उससे करवाइए और कर दीजिए सर। एक दूसरी वे भी है, आप स्किल बना सकते हो, दूसरी वे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं न्यू में जाऊंगा सर। फॉर एग्जांपल कोई टास्क करवाना है जो आप नॉर्मली रूटीन करते हो, वो भी वन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है। ओके, डेली बेसिस पे करते हो। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ मेरी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करने के बाद मेरा जो AIS TDS है उसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके, क्या करता हूँ? डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड करने की भी एक स्पेसिफिक स्टेप है, क्योंकि मेरा दिमाग है तो मुझे समझ में आता है कि भाई यहाँ पे जाके मैं कर रहा था। तो यू कैन क्रिएट अ स्किल यूजिंग रिकॉर्डिंग अ स्किल। आप अपने स्टेप्स परफॉर्म करते जाइए, वो देखते जाएगा मुझे, और वो देखते जाएगा और देख लेगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपकी वो पूरी स्किल्स बना के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अ प्लस, यहाँ पे स्किल में जाके, कहाँ है रिकॉर्ड? है दिख रहा आपको? लोगों ने हटा दिया यहाँ पे। एक बार प्लस में वापस से जाता हूँ, स्किल्स में मैनेज पे जाता हूँ। हर बार ये चेंज कर रहा है, क्रिएट विथ क्लॉड, राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस। कोई बात नहीं, चैट जीपीटी के पास होगा। चैट जीपीटी के पास जाते हैं, चैट जीपीटी के पास जाके उसको बोलते हैं, यहीं पे मिल जाएगा चैट जीपीटी में तो। सर ऐसे ही होता है सर।
कुछ भी नहीं करना होता है, आपको जाके वहां पर रिकॉर्ड का बटन दबाना होता है, और रिकॉर्ड जैसे फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी टास्क इनसाइड योर कंप्यूटर और ईच एंड एवरीवेयर, ब्राउजर में जाके कहीं भी कुछ भी करोगे, वो मेरी स्क्रीन कैप्चर करते रहेगा, फिर उसको पूरा अंडरस्टैंड कर लेगा, जब स्टॉप करूंगा पूरा अंडरस्टैंड कर लेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद वो अचानक से एक बढ़िया सी एक स्किल क्रिएट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या कर रहा था मैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके एआईएस टीआईएस डाउनलोड कर रहा था, तो उसके स्टेप्स थे, तो उसने रिकॉर्ड कर लिए, अभी उसकी मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्वोक करूंगा तो वो ऑटोमेटिक जाएगा सुबह में और वापस एआईएस टीआईएस डाउनलोड करके ले आएगा ऑटोमेटिकली। टोकन यूज होंगे इसके। क्लाउड में जाओ ना प्लीज एक बार वापस। उसमें जो प्लस मेनू है ना वहां पे रिकॉर्ड्स की है। नहीं आओ तुम। उधर नहीं, ये इसमें तो यही बता रहा है, वही बता रहा है। नहीं आ जाओ भाई साहब। क्या करूँगा? नहीं कोवर्क मांगो सर, चैट वाला नहीं हो रहा है। कोवक मत छू, कोवक मत छू। कोड में जाओ दस मिली है। यहाँ पे ही होता है, पर अभी पता नहीं कब क्यों नहीं आ रहा है। इधर ही होता है, बस कुछ भी नहीं है सर, जैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमारी स्क्रीन वैसे रिकॉर्ड करेगा, और जो हमने टास्क किया उसको जब भी मैं सेव करूंगा ऑटोमेटिकली वो एक स्किल बना के दे देगा। जैसे वो स्किल क्रिएटर यूज करेगा बाद में यूज, और स्किल क्रिएटर का यूज करके वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करके आपको एक बड़ी सी स्किल बना के दे देगा, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं है। बहुत बढ़िया सर। तो ये था हमारा पूरा, और फॉर एग्जांपल मैंने एक स्किल बनाई थी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, पूरा एक प्लगइन बनाया है सर, उसमें एमसीपी भी है और स्किल्स भी है, और मेरे कैलकुलेशन के लिए डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन कोड भी है। तो वो क्या नाम है उसका सर, इट हैज ए नेम ऑफ अ टेली माइंड। कौन सा वाला? टेली माइंड। फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू माय गिटहब, यहाँ पे टेली माइंड करके आपको एक गिटहब पेज मिल जाएगा मेरा। ये टैली माइंड पूरी मेरी स्किल्स है। ये स्किल सर क्या करती है, ये प्लगइन है पूरा। प्लगइन में देखिए सर ये क्या करता है, ये एमसीपी सर्वर भी है। फॉर एग्जाम्पल क्या करता है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्किल्स पहले क्या यूज करेगा, स्किल्स। स्किल्स में फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको एक टास्क दे दिया कि भाई तुझे जाके मेरे जीमेल में यूजिंग कनेक्टर ऑफ जीमेल यानी एमसीपी कनेक्टर, तू जीमेल में जाके ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर दे, मेरे फोल्डर में रख दे, फोल्डर के क्लाइंट स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्लाइंट के स्पेसिफिक डे वाइज फोल्डर रख दे, और तू जाकर उसको समझने के बाद तुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टैली का एक्सएमएल, जो टैली एक्सएमएल यूज करता है ना, उसमें तुझे अकाउंटिंग की एंट्री डाल देनी है। ओके। अकाउंटेंट अकाउंटेंट जो करता है ना उसका मैंने इंस्ट्रक्शन को दे दिया है कि भाई अकाउंटेंट जैसे एंट्री करता है वैसे एक्सएमएल में तुझे एंट्री कर देनी है। एक बार तू एंट्री करके रख, फिर एक वीक के एंड में तू मुझे पूछेगा कि भाई देखो मेरे ये डॉक्यूमेंट डेली डाउनलोड करके इतना मैंने एक्सएमएल जनरेट कर दिया है, अभी तू क्या तुम देख लो, अभी मैं देखूंगा, मैं उसको चेक करूंगा, और ये स्किल क्या करेगा, उसको मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई तुझे ऑडिट ट्रेल भी रखना है। क्या रखना है? ऑडिट ट्रेल, कि भाई तूने जैसे ये काम किया है, कैसे एंट्री की है, कौन सा डॉक्यूमेंट से कहाँ से क्या एंट्री की है, तुझे वो भी एक्सप्लेनेशन देना है। तो वो उस हिसाब से पूरी एक एक्सएमएल जनरेट करके दे देगा। और वो एक्सएमएल अब क्या करेगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे टैली को मैं थ्रू एमसीपी कनेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? मेरे टैली को थ्रू एमसीपी कनेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे टैली को अगर एमसीपी से कनेक्ट करना है ना, तो मेरे टैली पास जाना होगा, टैली को मैं ओपन करूंगा।
सर सबसे पहले तो मेरे टैली में थोड़ा सा सेटिंग्स लगेगा। सेटिंग्स में क्या लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। F1 हेल्प में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाके, कनेक्टिविटी में जाके, यहाँ पे आपको बोथ यस एंड 9000 कर देना है। क्या करना है सर, बोथ यस एंड 9000 कर देना है एक बार। फिर आपको रिस्टार्ट करने को पूछेगा, रिस्टार्ट करिए, उसको वापस से बंद करिए, टैली को वापस से बंद कर दो, और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप एक बार ये टैली को एक बार ओपन कर दीजिए। और जो कंपनी आपको लोड करनी है अपने कोवर्क में उसको ओपन कर दीजिए, यानी बस उसके बाद में मिनिमाइज कर दीजिए, अपने कोवर्क में जाइए। और जो मेरी ये स्किल्स है ना, पहले ये पूरा प्लगइन आपको मेरे कोवर्क में इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। कैसे करोगे सर, यहाँ पे मैंने पूरा गाइड दिया है सर, ये पूरा अकाउंटिंग वर्कफ्लो कैसे करेगा। फिर ये क्या करेगा सर, देखिए मैं इसको एक बार पहले समझा भी देता हूँ कि भाई ये पूरा इनवॉइसिस, परचेज बिल, बैंक स्टेटमेंट, कैश रिसीव, ठीक पूरा। फिर मेरा टैली में वो देखेगा कि भाई ये जो मैंने क्रिएट किया वो जो लेजर मुझे टैली में ऑलरेडी मिल जाता है तो सही है, तो मैं उसको क्रिएट न्यू नहीं करूंगा। नहीं मिलता है तो मैं क्रिएट न्यू करूंगा। ओके, फिर क्या करेगा, फिर ड्राफ्ट न्यू लेजर और सब कुछ नहीं मिल जाएगा तो एग्जिस्टिंग, फिर वो जो भी एंट्री करना है वो एंट्री करना है। फिर एक बार मैं वीकली अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव करने के बाद वो डायरेक्टली मेरे टेली प्राइम को यहां से ओपन रखूंगा, मेरे टेली प्राइम को, और वो थ्रू एमसीपी कौन कनेक्ट करेगा सर, मेरा क्लॉड कोवर्क कनेक्ट करेगा थ्रू एमसीपी मेरा टैली। और कनेक्ट करने के बाद क्या करेगा सर, वो यहाँ पे जो मेरा एक्सएमएल उसने क्रिएट करा है वो पूरा जाके अपलोड कर देगा। अंडरस्टैंड, ऐसे काम करेगा। उसका मैंने चार्ट्स भी दिया है, अगर आपको शांति से समझना है तो भी समझ देगा क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट वो ज्यादातर समझेगा क्लाइंट्स के होगा, तो सेल्स, परचेज बिल, बैंक लाइन, जो भी सर, जनरली ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इट विल बी अंडरस्टैंड बाय, बिकॉज इट्स एआई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। बट इफ यू गिव अ मार्कडाउन फाइल वो टोकन फास्ट समझेगा तो टोकन कम यूज करेगा। कैसे इंस्टॉल करना है, देखो ये जिप मैन्युअली भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं करना है तो डायरेक्टली ये जो कोड दिया है मैंने, ये कोड आपको पावर शेल में जाना है। देखिए पावर शेल में जाओगे आप, विंडोज पावर शेल में जाने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ ये कोड यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, तो आपको सबसे पहले वो पाइथन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो देख लेंगे नहीं ये हो चुका है सर, वो कनेक्ट कर रहा है मेरे गिटहब पे जाके वो सब कुछ डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करने के बाद वो देखेगा कि चलो ऑलरेडी है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। देखो मैंने बोथ 9000 किया था, बोथ 9000, तो उसने देख लिया और देखने के बाद बोला है कि भाई हाँ कनेक्शन रेडी है, आप यू कैन यूज इट। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे क्लॉड कोवर्क के पास जाऊंगा और कोवर्क में इसको बोलूंगा कि भाई जा, तू अभी जो तूने एक्सएमएल बनाई थी ना वो मेरे टैली में अपलोड कर दे। वो ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा। फिर सर ये अपलोड कर दिया है, सब कुछ कर दिया, ये अकाउंटिंग वाला काम कर दिया। अगर इफ आई एम सी है तो मेरे को क्या लगेगा सर, एनालिसिस भी करना है, लेजर एनालिसिस, ऑडिट करना है पूरा, जो भी करना है ना। अभी मेरा टैली यहाँ पे ओपन है, अभी मैं इधर बोलूंगा ना कि जाके तू मेरे टैली में ये वाला लेजर एनालिसिस करके दे, तो एनालिसिस करके भी दे देगा। टैली में से डेटा डाउनलोड करेगा, यहाँ पे एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस उसकी स्किल्स बनाई हुई है, उसकी वो यूज करेगा, स्किल यूज करके पूरा एनालिसिस करके दे देगा सर। अंडरस्टैंड, डेटा एनालिसिस जो भी करना है सर आप यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हो सर, एकदम इजीली। कैसे कर सकते हो, एकदम इजीली। 7 बजने आए, और उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा टैली में सीखना है कि टैली में से हम लोग कैसे डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अगर सीखना है तो मैं आपको सिखाऊंगा। चलो थोड़ा सा सिखा लेता हूँ। पानी की बोतल आपको, थैंक यू थैंक यू। सर ये मेरा टैली है, क्या है सर, ये मेरा टैली है।
टैली में आपको पता है कि टैली में यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। टैली में अगर मैं गया कंट्रोल एन किया सर, तो ये क्या ओपन हुआ? सर क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेटर में? लेजर से अगर जो एनालिसिस करते हैं उसमें अगर कहीं पे समेशन करना है या वो करना है उसके लिए हम यूज करते हैं इससे। यानी कैलकुलेशन करने के लिए जनरली ना। तो आज देखिए, मैंने कभी आपको ये सिखाया है कि भाई मेरे टूथपेस्ट में नमक है? हाँ क्या मेरे टूथपेस्ट में नमक है? वैसे ही क्या मेरे टैली में एआई है? दिख रहा है आपको एआई? हाँ, दिख रहा है मेरा एआई मेरे टैली में। देखिए अभी सर, मैं इसके साथ नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूंगा, मेरी नेचुरल लैंग्वेज में, और वो मुझे आंसर देगा। देखो यहाँ पे कंट्रोल एन करके भी देखना। वाह, उसने मुझे आंसर दिया। मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आज तक आप क्या करते थे? 1+1=2, 2+2=22। यहां पे देखियो, आपने नॉर्मल पूछा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और उसने मुझे आंसर दिया। अभी देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेल्स नहीं लिखते, कैश ही लिख देते हैं। आंसर दे दिया उसने। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। वाह वाह, आंसर दे रहा है मुझे तो ये तो। कभी आपने कभी आपने ये सोचा था कि भाई ऐसे नॉर्मल में मुझे आंसर देगा? कैसे आंसर दे रहा है ये! वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। अभी देखिए मैं इसको पूछूंगा करंट रेशियो। वाह भाई वाह, इसने मुझे करंट रेशियो का आंसर दे दिया। कभी आपने ऐसे यूज किया इसको? बहुत बढ़िया। अभी इसको इसको बोलते हैं एकदम। अभी मैं आपको पूछूं, क्या मेरे टैली में एआई है? सर है, आपको नहीं पता है। अंडरस्टैंड? अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं मेरे नॉर्मल जगह पे जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भाई ऐसे कितने कमांड्स है, ऐसे कितने नेचुरल लैंग्वेजेस है जो मैं मेरे टैली को कंट्रोल एन करके मेरे कैलकुलेटर पैनल में पूछूं और मुझे वो आंसर देने लगे। तो मैं जाऊंगा मेरे नॉर्मल गूगल में जाके बोलूंगा टैली नेचुरल लैंग्वेज कमांड लिस्ट। तो मुझे एक लिंक दे देगा, और वो लिंक देने के बाद मुझे, मैं ये वाले पे नेचुरल लैंग्वेज फॉर बिजनेस इस पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितने भी कमांड्स है वो मुझे सब कुछ दे देगा कि भाई आप पूछिए मुझे। टर्नओवर, सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर, जो भी पूछे। फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा प्रॉफिट, आंसर दे रहा है मुझे प्रॉफिट। टर्नओवर, टर्नओवर का भी आंसर दे रहा है। नेट लॉस, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, ये जो भी आप पूछोगे, वैट, परचेस, सेल्स रेशियो, क्विक रेशियो, नेट अवेलेबल स्टॉक। अगर किसी पार्टी के नाम का फोन नंबर भी जानना है ना सर, तो फोन नंबर ऑफ, तो भी यहां पे लिखोगे ना, फोन नंबर ऑफ डीबीएस बैंक। डीबीएस का बैंक का फोन नंबर नहीं है, नहीं तो वो मुझे आंसर भी दे देता। अल्फा, अल्फा लिखता हूँ, शायद मिल जाए। नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर होता तो मुझे आंसर मोबाइल नंबर भी दे देता सर, अकाउंट नंबर, पान नंबर भी दे देता। इतने सारे नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स है, यू कैन यूज, इट्स कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज फॉर बिजनेस, वी कैन यूज इनसाइड टैली। अब मेरे टैली में एआई है। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा वाला एआई नहीं है, जो भी है ऐसा ही है। ओके, तो बहुत बढ़िया सर। अभी मैं मेरा वापस से टैली में जाऊंगा, टैली के अंदर वापस से कंट्रोल एन लिखूंगा, और अब देखना सर, अब देखना, अब जादू और बढ़िया वाला जादू हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं मेरे टैली के पास जाता हूँ और उसको जाके नॉर्मल में पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ? फॉर एग्जाम्पल उसको पूछूंगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना, अगर ये, अब मैं क्या करूंगा, उसको एसक्यूएल क्वेरी दूंगा। क्या दूंगा?
एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है सर? जैसे हमारा पाइथन लैंग्वेज होती है वैसे ही एसक्यूएल की क्वेरी होती है ना, एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, कोडिंग लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज, जो अगर मेरे टैली में वो सपोर्ट करती है। तो अगर मुझे उसका कमांड्स जानने हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? टैली में ही जाऊंगा, और टैली गूगल में जाऊंगा, और गूगल में जाके इसको मैं पूछूंगा कि भाई एसक्यूएल क्वेरी लिस्ट फॉर टैली, तो गूगल में एक लिंक मिल जाएगी आपको, एसक्यूएल क्वेरी टैली हेल्प। सर यहाँ पे अगर एक बार आपने ओपन किया तो ये पूरा आपको एक कमांड मिलेंगे बहुत सारे के, कौन से कमांड यूज करके यू कैन क्वेरी आउट। सर अभी यहाँ पे देखिएगा, सर यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फ्रॉम लेजर सिलेक्ट डॉलर नेम फ्रॉम, तो मैं क्या चाहता हूँ, बस मुझे बता खाली कि मेरे कौन से लेजर्स आर अवेलेबल इनसाइड माय टैली। तो जैसे ही मैं एंटर दूंगा, देखिए वाह 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 वाह, उसने मुझे सब लेजर, जितने भी लेजर है सबके मुझे नाम दे दिए सर। फिर वापस से मैं कंट्रोल एन करूंगा और वापस से पेस्ट करूंगा, और डॉलर नेम, डॉलर क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम टैली। अगर ये बैड फॉर्मूला होगा तो क्रैश हो जाएगा, तो वापस से मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये डू नॉट यूज बैड फॉर्मूला, लेट्स यूज द फॉर्मूला विच हैज ऑलरेडी बिन गिवन। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, ये वाला ले लूंगा, ये वाला कमांड ले लूंगा। इतना सारा लेने की जरूरत नहीं है। डॉलर नेम क्लोजिंग बैलेंस, कंट्रोल एन कंट्रोल वी एंटर। सर वाह वाह वाह, उसने मुझे नाम के साथ क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। अंडरस्टैंड? अभी मैं मुझे उसके साथ ओपनिंग बैलेंस भी लेना हो तो कंट्रोल वी, कॉमा करना रह चुका था सर, ओपनिंग बैलेंस, और मैं एंटर करूंगा वो मुझे तीनों दे देगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। सर कितना बढ़िया है सर। इसको मैं क्या करूंगा सर, ये देख रहे हो सर, इतना सारा डेटा है मेरे पास, इतना सारा डेटा, सब लेजर्स का मुझे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैं ये मैं अगर मेरे एक्सेल के साथ कनेक्ट कर दूं तो कितना बढ़िया काम हो जाए सर। और एक चीज, अगर आपका अकाउंटेंट होगा और आपका लास्ट 2 डे या 2 डेज या 1 डे बाकी होगा फाइनलाइजेशन का, और आपने फाइनलाइजेशन कर भी लिया होगा, और बाद में पूरा जो काम किया होगा आपने फाइनलाइजेशन अकाउंट कर लिया होगा, और काम करने के बाद अकाउंटेंट का फोन आएगा, सर सर 2 एंट्री चेंज करनी है। कितनी एंट्री? दो दो एंट्री चेंज करनी है। तो आप क्या बोलोगे, चलो कोई बात नहीं यार, तू मुझे इतनी हेल्प करता है तो मैं भी तुझे हेल्प कर दूंगा, वो 2 एंट्री की जगह 20 एंट्री दे देगा। सर अभी इतनी ही है ना, कर लो ना। तो आपने फाइनलाइजेशन कर चुके हो सर, अब वापस से वो 20 एंट्री इनकॉर्पोरेट करो टैली में, टैली में इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या करोगे, वापस से पूरी हजामत करोगे सर। इससे अच्छा मैं मेरे टैली को मेरे एक्सेल के साथ लाइव कनेक्ट कर दूं। क्या कर दूं सर? लाइव कनेक्ट। तो जैसे ही मेरे टैली में कुछ अपडेट होता है मेरे एक्सेल में अपडेट हो जाए। तो मुझे फाइनलाइजेशन एक बार मैंने किया होगा तो मैं जाके सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश करूं तो वो फाइनलाइजेशन वापस से वहीं पे क्रिएट हो जाए। बढ़िया सर। ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो सर। तो मैं मेरे अभी टैली को, जैसे मैंने एमसीपी यूज करके मेरे कोवर्क के साथ उसको कनेक्ट किया, अभी मैं इसको टैली का ओडीबीसी यूज करके मैं मेरे एक्सेल के साथ कनेक्ट करूंगा। कहां पे कनेक्ट करूंगा? एक्सेल के साथ। अभी देखो सर, ये मेरा टैली ओपन है। ओके, अब मैं जाऊंगा मेरे एक्सेल के पास। कहां पे जाऊंगा? एक्सेल के पास।
सर यहाँ पे आपको वो एसक्यूएल क्वेरी डालनी पड़ेगी, इस कॉल पावर क्वेरी वाला कमांड डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कोडिंग लैंग्वेज लैंग्वेज आनी चाहिए। पर नहीं आती है तो मैं मेरे एआई के पास जाऊंगा और एआई के पास जाके बोलूंगा कि मुझे ऐसा कोड दे दे, कि भाई मुझे ऐसा एक कोड दे दे कि जो मैं मेरे एक्सेल में डेटा पुल कर सकूं मेरे टैली से यूजिंग ओडीबीसी। कौन सा वाला डेटा? डॉलर नेम, डॉलर ओपनिंग बैलेंस, डॉलर क्लोजिंग बैलेंस। ये तीन अभी तो इतना रखते हैं सर, इसमें बहुत सारा डेटा होता है सर, आपको पता नहीं है। ये टैली में आपको पता है, देखो मैं कंट्रोल एन करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा, और अगर आप देखोगे इसको सबको मैं डिलीट कर दूं, आपको ए टू जेड डेटा लेके दिखाता हूँ सर। और सिर्फ स्टार लिख दूं ना मैं यहाँ पे कमांड में, तो सब डेटा आ जाएगा सर। सर देखिए कितने लाइन है, 514 कॉलम्स है, देख रहे हो सर? ये पूरा डेटा भी आप अपने एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। पर मैं अभी कुछ नहीं करूंगा सर, मैं अभी नॉर्मली बस मेरे टैली में रहूंगा और जाके मैं एक्सेल में क्या कौन सा वाला डेटा डाउनलोड करना चाहता हूँ, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड लाइजर नेम। ओके, तो मैं मेरे एआई के पास जाऊंगा, और एआई के पास जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, जेमिनाई, तो जेमिनाई तो ऑलरेडी ओपन है, तो मैं न्यू में चले जाऊंगा और मैं इसको जाके बोलूंगा I want to connect my Excel to Tally Prime using ODBC 900 port. So you need to give me a blank query code where I can download dollar name, dollar opening balance, dollar closing balance using ODBC 9000 port from Tally Prime. So give me a very simple code, a two liner, a one liner code only. बहुत बढ़िया सर, उसने मुझे कोड दे दिया। क्या दे दिया? कोड दे दिया। ये एसक्यूएल क्वेरी दिया उसने, और अभी एक ये कोड दे दिया। अभी जो ये कोड स्निपेट दिया ना, पावर क्वेरी एम कोड, उसको मुझे क्या करना है, ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मेरे एक्सेल में जाना है, एक्सेल में जाने के बाद मेरा डेटा, सर अभी आई एम कनेक्टिंग माय लाइव डेटा टू माय टैली। ओके, यानी टैली में कुछ भी चेंज करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सिर्फ डाउनलोड नहीं कर रहा हूं सर मैं, तो मैं डेटा में जा रहा हूँ, गेट डेटा में जा रहा हूँ, फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम ब्लैंक क्वेरी में जाऊंगा मैं। और ब्लैंक क्वेरी में जाने के बाद एक मेरा कोड एडिटर ओपन होगा। क्या होगा? कोड एडिटर ओपन होगा। सर अब ये कोड एडिटर ओपन हुआ है, कोड एडिटर में मैं कहा जाऊंगा, एडवांस एडिटर में। एडवांस एडिटर में जाके जो ऑलरेडी जो कोड अवेलेबल है उसको कंट्रोल एंड डिलीट करूंगा और यहाँ पे ये पेस्ट करूंगा और डन करूंगा। अगर वो मुझे कुछ भी दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा और वो पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा, वो समझ जाएगा, मुझे एक नया वाला कोड दे देगा। हम्म? वापस से एडवांस एडिटर में जो ऑलरेडी कोड अवेलेबल है उसको मैं कंट्रोल ए डिलीट और यहाँ पे पेस्ट, और डबल क्या था ये, करू करू इक्वल निकालो। अभी मुझे कुछ पूछ रहा है, एडिट क्रेडेंशियल्स। सर ये जनरली पहले नहीं पूछता था, अभी पूछने लगा है। पर मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट और कस्टमर और विंडो में जाऊंगा, कहीं ना कुछ क्लिक करूंगा और मैं जाके इसको
डेटाबेस मैनेजमेंट कुछ होता ही नहीं है सर, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है आजकल, बाकी नहीं आता था पहले। ओके, इसको मैं सेलेस लिख दूंगा, और ये वाह सर, बहुत बढ़िया सर, पूरा डेटा मेरा डाउनलोड हो चुका है। अगर ये देखो ये माइनस में हुआ है सर, इफ यू वांट टू चेंज दिस -1, तो यू कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हियर, और यहाँ पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू कर दो। बहुत बढ़िया सर, सब एब्सोल्यूट वैल्यू हो चुका है। ओके, अभी कुछ भी नहीं सर, ये क्लोज एंड लोड। सर मेरा पूरा डेटा डाउनलोड हो चुका है। अगर जो डेटा जो पहले हुआ था, अगर मैं मेरे टैली में जाके यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा ना, और यहाँ पे आऊंगा मेरे एक्सेल में, एक्सेल में आने के बाद ये रिफ्रेश बटन क्लिक करूंगा, मेरा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। अंडरस्टैंड? लाइव कनेक्ट हो चुका है मेरा डेटा। अभी इसको और वैल्यू एडिशन सर्विस देनी है तो मेरे नॉर्मल क्लासेस में मैंने आपको वीबीए कोड भी सिखाया था सर। ओके, तो ये वाला फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या करूंगा, एक फॉर एग्जांपल इसको मैं स्पेसिफिकली सेव एज करके इसको डाउनलोड करता हूँ, और आपको सिखाता हूँ थोड़ा वीबीए कोड वाला भी, कि भाई इसको वैल्यू एडिशन सर्विसेज कैसे देते हैं अपने क्लाइंट्स को। हमारा डेटा है, मैंने एक बार डाउनलोड कर लिया, और उसको बढ़िया सा वैल्यू एडिशन वाला सर्विसेज कैसे देते हैं सर। ये वाले डेटा से आपको क्या लगता है, ये वाले डेटा से मैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की बैलेंस शीट बना सकता हूँ? लेजर है, क्लोजिंग बैलेंस ना ओपनिंग बैलेंस? हाँ, ग्रुपिंग नहीं है ना, ग्रुपिंग वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। हाँ, तो ग्रुपिंग वाला। ओके, तो ये अभी अभी डेटा एनालिसिस करते हैं इसका। ओके, यूजिंग वीबीए कोड क्या करते हैं सर, मैं डाउनलोड में जाऊंगा, डाउनलोड में जाके कहीं भी इसको सेव कर देता हूं, नितिन सर आंसर वीबीए नाम दे देता हूँ। ओके, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से कनेक्ट हो चुका है मेरा, अभी अभी कनेक्ट नहीं करना है। अभी मुझे क्या करना है सर, एक वीबीए कोड जनरेट करवाना है। किससे? मैं मेरे एआई से। और उसको बोलूंगा कि इसका पूरा जो डेटा एनालिस्ट काम करता है ना, वैसा एक वीबीए कोड एक ही बार जनरेट करना है, क्योंकि यही डेटा यही फॉर्मेट में हम लोग हर बार डाउनलोड करने वाले हैं। ओके, मैं डाउनलोड में जाऊंगा, डाउनलोड में जाने के बाद ये वाला एक्सएलएस जो है मैं अपलोड कर दूंगा, और उसको बोलूंगा you need to understand this data, and after understanding this data you need to do a data analysis same way the data analyst do all the steps. For example, it understand the data, then after understanding clean the data, then analyze the data and visualize the data in a stunning format, in a beautiful charts, and in a excel format. So you give me a VBA code, which I just give me a VBA code, nothing else. You don't need to give me anything. In a one file only you give me a VBA code, where I just copy from here VBA code and put into a VBA editor of Excel. So give me a VBA code which does a whole data analyst can be done, data analyst do. सर अभी वो फाइल को एक बार मुझे कोड जनरेट करवाना है, फिर एक बार आपने करवा लिया तो ऑटोमेटिक इसके बाद मैं यही पूरा सिखाऊंगा आपको। क्या सिखाऊंगा सर? टीडीएल भी सिखाता हूँ। सर उसने मुझे पूरा वीबीए कोड दे दिया, बहुत बढ़िया। अभी ये इसको इसका कोड का मैं क्या करूंगा सर, ये कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद मेरे एक्सेल फाइल को मैं ओपन करूंगा, जो एक्सेल फाइल थी मेरी, इसको सेव एज कर दूंगा सबसे पहले तो सर। सेव एज करके मैं क्या करूंगा सर, इसको मैक्रो में सेव कर दूंगा, मैक्रो एनेबल डॉट एक्सएल एस एक्स है, तो डॉट एक्सएल एस एम कर दूंगा मैं। ओके, सेव किया मैंने। अभी सर वो जो कोड उसने दिया ना मुझे यहाँ पे कहीं पे, जैसे मैंने ब्लैंक क्वेरी में जाके वेब एडिटर किया था, वो ब्लैंक क्वेरी वाला एडिटर में मैंने कोड पेस्ट किया था, पर वो किसका था?
डेटा पुल करने के लिए फ्रॉम टैली। अभी मुझे VBA कोड कहीं पे डालना पड़ेगा, तो ये VBA कोड डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आई नीड टू पुट इट ऑल्टर F11। कौन सा सर? ऑल्टर F11। तो VBA कोड एडिटर ओपन हो जाएगा सर ये। फिर मैं जाऊंगा फाइल में, फिर मैं जाऊंगा इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद मॉड्यूल में, मॉड्यूल के बाद ये जो कोड उसने दिया मुझे यहाँ पे पेस्ट करूंगा और कंट्रोल एस करूंगा। और कंट्रोल एस करने के बाद ये कंट्रोल एस मतलब कंट्रोल सेव किया, मैंने सेव किया। फिर ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है ना, ग्रीन बटन, इसको बोलते हैं रन। इसको मैं रन करूंगा सर। तो रन करने के बाद और एक बार पूछ रहा है तो मैं उसको क्लिक करूंगा। तो अभी थोड़ी सी उसने मुझे एरर दी है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, स्क्रीनशॉट लेके फुल स्क्रीन का मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। और मैं क्या करूंगा, मेरे एआई के पास, भाई ये तूने दिया वो गलत है, प्लीज रिजॉल्व दिस एंड गिव मी अगेन अ होल कोड। नया कोड दिया, कंट्रोल A डिलीट, कंट्रोल S एंड F5 करूंगा तो भी रन हो जाएगा। कोई बात नहीं, और एक बार उसने मुझे दे दिया। जब तक नहीं देता है प्रॉपर आंसर तब तक मुझे जाकर कंट्रोल V और इसको फ्लैश में एक्सटेंडेड थिंकिंग ऑन कर देता हूँ। सोच के आंसर दे भाई, अच्छे वाला आंसर दे। वापस से कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, एंटर दिया, कंट्रोल A डिलीट और कंट्रोल V, कंट्रोल S और F5 एंटर। सर वाह, उसने कुछ काम कर दिया है। अभी क्या किया है मुझे पता नहीं है, मैं इससे बाहर निकलूंगा ना तब मुझे पता चलेगा। वाह, उसने क्या बढ़िया सा फॉर्मेट बना के दे दिया मुझे, एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल एंड लेजर इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, क्लीन्ड डेटा। फिर शीट वन तो हमारे कुछ काम की, मैंने क्वेरी 1, ये जो डेटा था मेरा, उसने डैशबोर्ड बना दिया। उसने बहुत बढ़िया डैशबोर्ड बनाया, नीचे देखिए। समझ में आया सर ये? ओके, अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अभी मैं आपको टैली से टैली TDL बनाना सिखा रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये मेरा गेटवे ऑफ टैली है। ये गेटवे ऑफ टैली पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ दिखता नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है, CFO CEO डैशबोर्ड। ओके, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको? तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक नया फीचर बनाओ। सो इफ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ अ न्यू फीचर इनसाइड द टैली, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक अ बटन और मे बी अ शॉर्टकट वेयर जस्ट यू जस्ट क्लिक दैट शॉर्टकट, और जस्ट आई वांट टू क्रिएट हियर बटन, इफ आई जस्ट क्लिक द बटन एंड क्लिक द बटन एंड जो मेरा जो क्लॉज 44 वाला डेटा है ना वो डाउनलोड हो जाए। ऐसा कुछ भी आपको जो करना है सर वो करवाइए आप। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक स्टूडेंट, मेरे एक क्लाइंट ने ऐसा डेटा बनवाया था कि भाई उसका जो उसके जो स्टाफ रहते हैं ना, उसके स्टाफ जो ऑलवेज उसको ना बोला गया है कि भाई ये दो क्लाइंट की ये जो बैंक अकाउंट है उसको तुम्हें छेड़ना नहीं है। हाँ, तो भी वो छेड़ते थे और चेंज करके आते थे और फिर वापस से मगजमारी होती थी, ये सब कुछ होता था, समझते नहीं थे। तो उन्होंने एक नया फीचर ही बनवा दिया कि भाई ये जो दो बैंक अकाउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन हो ना तो पॉप आ जाए कि तुम्हें याद है ना कि इसको छेड़ना नहीं है, तो उनको याद रह जाएगा तो अब छेड़ेंगे नहीं। ओके, तो ये ऐसा भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे मेरे गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे एक छोटा सा ये एक रिपोर्ट बन जाए कि भाई CEO डैशबोर्ड रिपोर्ट, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरा CEO का डैशबोर्ड, CEO को जो जो चीजें जाननी है उस पर क्लिक करे और आज उसको मिल जाए तुरंत ही। तो ऐसा हम लोग एक बढ़िया सा एक TDL बनाएंगे।
ओके। अभी टीडीएल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे एआई के पास जाऊंगा और एआई को जाके मैं बोलूंगा make a one TDL, tally TDL, in which as a CEO of a company, I wants to know some of the important data. So you understand by yourself, and whatever the understanding that I require as a CEO of my company, I just click that button inside my gateway of Tally using that TDL. So it present me a whole CEO dashboard. सर इसके पैसे लगते हैं, लोग लाख रुपया चार्ज करते हैं टीडीएल बनाने का। सर उसने मुझे दे दिया अभी, ये कोड दे दिया है, जैसे हम लोग कोड यूज करते हैं वैसे कोड ही दिया है उसने। अभी मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड कर लिया तो उसने मुझे टेक्स्ट में डाउनलोड दे दिया। तो टेक्स्ट में मुझे नहीं रखना है, उसको रीनेम करना पड़ेगा। तो उसने मुझे सीईओ डॉट टीडीएल, तो कंट्रोल सी करूंगा मैं, और मैं जाऊंगा जो उसने फाइल जो दी है वो मैं उसको मैं, और इसको F2 और कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी, और डैशबोर्ड 1 2 3 कर देता हूँ अभी। ओके, और मैंने ये बढ़िया सा उसको चेंज कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे टैली में जाऊंगा, F1 हेल्प में जाऊंगा, टैली टीडीएल एंड एड ऑन्स पे क्लिक करूंगा, मैनेज लोकल टीडीएल पे क्लिक करूंगा, एंटर दूंगा। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई पाथ करूंगा, क्या करूंगा, कौन सा वाला पाथ, जो ये वाला पाथ है जहाँ पर मेरा टीडीएल पड़ा हुआ है, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, एंटर। तो यहाँ पे मेरे को एक मेरी टेली टीडीएल वाली फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। सीओ डैशबोर्ड 1 2 3 एंटर, यस, एंड ऑफ लिस्ट। कुछ एरर आई तो एरर का क्या करना है सर, इसको मुझे इसकी प्रिंट स्क्रीन नहीं हो रही है। इसको मैं जाऊंगा वापस से, और यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। लाख लाख रुपए टीडीएल बनाने के लिए हम लोग ने खुद ने दिए है सर। 60,000 रुपए तो एक टीडीएल बनाने के लिए मेरे क्लाइंट ने स्पेसिफिकली वो उनको दिए थे। और मेरे एक स्टूडेंट ने तो ये पूरा टीडीएल मैंने एक बार सिखाया, तो स्टूडेंट ने क्या किया सर, वो जो जितने भी ज्यादातर मोर देन 60 to 80% ऑफ द क्लॉज ऑफ जो जो 3CB 3CD का रिपोर्ट है ना, उसके क्लॉज के पूरा बना दिया उसने। तो डाउनलोड करता है, क्लिक करता है, डाउनलोड करता है और चेक कर लेता है सर। सर वापस से मैं क्या करूंगा, ये जो फाइल है इसको मैं ओपन करूंगा, इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट इन नोटपैड करूंगा, कंट्रोल ए एंड डिलीट एंड कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और इसको बंद कर दूंगा। और जाकर टैली प्राइम में मैनेज लोकल टीडीएल वापस से करूंगा, एंटर करूंगा। नहीं था, ठीक, लोडेड, ग्रेट, ग्रेट। ओके, तो ये लोडेड हो चुकी है, अभी कोई एरर नहीं है बस। ओके, ग्रेट। इसको मैं जाऊंगा एस्केप करूंगा, देखिए सर यहाँ पे सीईओ एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड आ चुका है। एक नया, आपने टैली के अंदर एक नया फीचर बना दिया, और इसमें क्या क्या दिख रहा है देखो, ट्रेजरी लिक्विडेशन पोजीशन, जो भी अभी इसको आप एडिट कर सकते हो सर, इसको क्या क्या दिखाना है। पर आपको ये पूरा टैली टीडीएल बनाना मैंने सिखा दिया। अंडरस्टैंड, समझ में आया। वैसे ही इसका जो मैंने आपको वो वाला सिखाया ना, आप एसक्यूएल में डाउनलोड कर रहे हो, उसका भी इधर पे बटन बटन दबा दो, एसक्यूएल में डाउनलोड हो जाएगा वहां से पूरा डेटा। ग्रेट सर, तो आज इतना रखते हैं सर, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। और हाँ हाँ हाँ, ये जनरली हमारा 90 यूं तो 100% खत्म हो चुका है, अगर सोचता हूं मैं
कि भाई अगर कोई कहीं से कहीं कोई सब्सक्रिप्शन मिल जाए $100 वाला तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, नहीं मिल रहा है तो फिर वी नीड टू हैव अ पेड वर्जन ओनली। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये पूरा पांच पांच सेशन रहे हमारे ये क्लॉड का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जितना सिखाना था, जो इंपॉर्टेंट रहता है वही है सर। 5 सेशन में मिनिमम आपको लगे होंगे 8-9 घंटे, 10 घंटे के आजू बाजू वाला सेशन था, तो ये 8-10 घंटे वाला आपका सेशन मैंने खत्म कर दिया, पूरा क्लाउड का इकोसिस्टम, और जो जो भी मेन इंपॉर्टेंट सिखाना था सब कुछ मैंने सिखा दिया। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Let us with a lot of thought. थैंक यू सर, थैंक यू, Taking your valuable time. थैंक यू। And we appreciate all your effort, and the next session would be on 27th August. Thank you very much for joining it. This will be put on the blog and you can do like that. Okay, thank you. सर वो अभी क्लॉड का नहीं रखेंगे, देखते हैं क्लॉड का नहीं होगा तो दूसरा कोई रखेंगे, पर रखेंगे इसे। ओके, बाय। Basically, it would be on AI. Okay.